خبر دیں گے آپ کو، پاکستان نے وائٹ بال سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ T20 انٹرنیشنل کے لیے 15 رکنی اور ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی سے۔ شاہد صاحب، سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بالکل اعلان کر دیا گیا، اور اس کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ T20 اسکواڈ میں بابر اعظم کی واپسی ہوئی ہے۔ دسمبر 2024 میں وہ آخری بار پاکستان کی T20 انٹرنیشنل ٹیم میں جنوبی افریقہ کے دورے پر کھیلے تھے۔ ایشیا کپ میں بھی نہیں تھے، جس پہ شائقین کو کافی غم و غصہ تھا۔ کوچ مائک ہیسن نے کہا تھا کہ بابر اعظم اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کریں گے تو وہ انہیں اپنی ٹیم میں لے لیں گے۔ اب بابر اعظم دوبارہ پاکستان کی ٹیم میں آئے۔ یہ ٹیم 3 سیریز کے لیے اعلان کی گئی ہے۔ پاکستان پہلے جنوبی افریقہ سے 3 T20 میچوں کی سیریز کھیلے گا، پھر اس کے بعد ٹرائی سیریز ہوگی اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز ہوگی، اور اس کے بعد سری لنکا کے خلاف بھی ون ڈے سیریز ہوگی۔ شاہین شاہ افریدی پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں، اور وہ جو ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ رضوان کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد ٹیم سے بھی ڈراپ کر دیا جائے گا، وہ غلط ثابت ہوا۔ محمد رضوان پاکستان کی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ شاہد ہاشمی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ I can say is every time I speak with Vladimir, I have good conversations, and then they don't go anywhere. They just don't go anywhere. So in that sense, but no, look, he's fighting a war. He's in a war. That's two very competent sides, and that's the way war is. You never know with war, but I would say that it's time to make a deal. A lot of people are dying. It's a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. In South Korea, I'll be meeting with President Xi of China. We'll have a pretty long meeting scheduled. We can work out a lot of our questions and our doubts and our tremendous assets together. So we look forward to that. I think something will work out. We have a very good relation. جب بھی پیوٹن سے بات ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، مگر کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا، روس کی 2 بڑی آئل کمپنیز پر پابندیاں لگا رہے ہیں، چاہتے ہیں روس یوکرین جنگ کا جلد خاتمہ ہو۔ سمجھتا ہوں روس پر پابندیاں لگانے کا یہ صحیح وقت ہے۔ امید ہے پابندیاں پیوٹن کو معقول رویے اختیار کرنے پر مجبور کریں گی۔ امید ہے روسی تیل پر عائد پابندیاں زیادہ عرصے تک برقرار رکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جنوبی کوریا کے دورے کے دوران چینی صدر سے ملاقات طے ہے۔ I can say is every time I speak with Vladimir, I have good conversations, and then they don't go anywhere. They just don't go anywhere. So in that sense, but no, look, he's fighting a war. He's in a war. That's 2 very competent sides, and that's the way war is. You never know with war, but I would say that it's time to make a deal. A lot of people are dying. It's a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. In South Korea, I'll be meeting with President Xi of China. We'll have a pretty long meeting scheduled. We can work out a lot of our questions and our doubts and our tremendous assets together. So we look forward to that. I think something will work out. We have a very good relation. خبر دیں گے آپ کو کراچی سے، جہاں پر ماڑی پور نیو ٹرک اڈا گیٹ نمبر 1 کے قریب مسافر بس الٹ گئی ہے۔ حادثے میں 3 افراد زخمی ہو چکے ہیں، سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں ماڑی پور سے، جہاں پر نیو ٹرک اڈا گیٹ نمبر 1 پر مسافر بس الٹ گئی ہے۔ حادثے میں 3 افراد زخمی، سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے یہ خبر دے رہے ہیں ماڑی پور نیو ٹرک اڈا گیٹ نمبر 1 کے قریب مسافر بس الٹ گئی ہے۔ حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پر ماڑی پور نیو ٹرک اڈا گیٹ نمبر 1 کے قریب مسافر بس الٹ گئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے یہ خبر ہے ماڑی پور نیو ٹرک اڈا گیٹ نمبر 1 کے قریب مسافر بس الٹ گئی۔ اور راولپنڈی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، شہری پر بہیمانہ وحشیانہ تشدد کا نوٹس رات گئے، گرفتاریاں کر لی گئیں۔ ARY نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پولیس کے چھاپے، شہری پر تشدد میں ملوث مرکزی ملزم کے 4 ساتھی گرفتار۔ بابر ملک ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ بابر بتائیے گا۔ آج یہ افسوسناک واقعہ جب ہوا ہے تھانہ سٹی کے علاقے گوال منڈی میں، جہاں پہ گودام کی شکایت پر
जो है इस शहरी हारिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बच्चे पढ़ते थे और रात को वो गैर अखलाकी सरगर्मियां करते थे और शोर शराबा करते, जिस पर इसे निशाने इबरत बनाकर खौफ और रात फैलाया गया, दहशत गर्दी फैलाई गई। ये खबर जब एयरवाई न्यूज पर नशर हुई तो इससे पहले पुलिस इसके ऊपर कुछ तहकीकात कर रही थी, एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था और तहकीकात जारी थी। लेकिन खबर नशर होने के पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से नोटिस लिया गया। आईजी पंजाब को हदायत की गई कि गिरफ्तार मुलजमान को फौरन गिरफ्तार करें। रात भर पुलिस, थाना सिटी पुलिस और डीएसपी सिटी अजहर शाह पर मुश्तमिल टीमें जो हैं वो ग्वालमंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मुलजमान के ठिकानों पर छापे मारते रहे। उनकी शनाख्त की गई और एक मरकजी मुलजम जिसके हाथ में पिस्टल था, उसको गुजर नामी, इसको हिरासत में लिया गया, जबकि इसके 4 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बाबर, ये बताइएगा गोदाम के मालिकान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए? देखें, फौरी तौर पर तो कार्रवाई ये की गई है कि जो वीडियो में तशद्दुद करते नजर आ रहे हैं मुलजमान, इनको गिरफ्तार करेंगे और इस गिरफ्तारी के बाद इनके इंकशाफात पर ही जो गोदाम के मालिकान है, ये स्क्रैप के गोदाम है और जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं, कुछ इधर उधर 5-6 गोदाम है, लेकिन गोदाम का मामला नहीं है। इन गोदामों में गैर कानूनी सरगर्मियां होती रही हैं। थाना सिटी के इलाके में एक थाना सिटी में कोई एहलकार है जिसका रैंक के हवाले से, नाम के हवाले से बताया जा रहा है कि इसको सीगारा में रखा जाएगा और इसकी गिरफ्तारी का हुक्म भी जारी किया गया है। वो इनका सहूलतकार था, जो तशद्दुद में मुलविस मुलजमान है, गोदाम के मालकान हैं, वो इन्हें बचाता रहा। तशद्दुद का जब वाकया हुआ तो उसके जरिए थाने में एक दरख्वास्त दी गई धमकी अमेज के, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ बताया तो तुम्हारे खिलाफ एक लड़की को छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और सारी जिंदगी तुम याद रखोगे, तुम्हें बच्चे भी बुलाएंगे नहीं। तो उसको तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई। मुलजमान इतने बासर थे, इनके बुरसा ने इन्होंने इस जख्मी को माफी तलाफी करके, सुलह सफाई करके जान छुड़ाई, अपनी वहां से जान खलासी करवाई और बड़े खौफो हरास में थे इलाके के लोग भी, मकीन भी। लेकिन ये वीडियो क्लिप कहीं से मंजरे आम पर आया जिसके ऊपर ये सारा एक्शन हुआ है। पुलिस हुक्काम की जानिब से और खुसूसी तौर पर आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज एल्पा ने हदायत जारी की हैं कि मुलविस नासिर को फौरी गिरफ्तार करे। सीपीओ ने भरमी का इजहार किया कि ऐसा मामला बिल्कुल रावलपिंडी में या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कोई दूर अफ्तादा इलाका नहीं, कच्चे का इलाका है। तो ये इसकी तहकीकात भी की जा रही है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अच्छा बाबर, एक दफा फिर से बताइएगा, क्या बुनियादी वजह थी, क्यों हारिस नामी शहरी को बरहना करके तशद्दुद किया गया? देखिए, माइट इज राइट वाला जंगल का कानून बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ 5-6 गोदाम थे ग्वालमंडी में और हारिस नामी जो शहरी है, इसके बच्चे पढ़ते थे। रात को इन गोदाम के अंदर ये मुलजमान गैर कानूनी सरगर्मियां करते थे और एक मुलविस एहलकार जो थाना सिटी में तैनात था वो भी इसमें शामिल था। वो आता जाता था, कोई मोहल्ले का बंदा, कोई लोग इनके सामने नहीं बोलते थे। मुसल्ला लोग थे, मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस थे, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत की और उन्हें मना किया, लेकिन और थाने में भी दरख्वास्त की, लेकिन चूंकि मुलजमान की पुष्पनाई थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर इसने थाना रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड वालों को दरख्वास्त दी, जिस पर कार्रवाई और मुलजमान। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 4 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और तादाद 5 होगी। बहुत शुक्रिया बाबर। पंजाब भर का मौसम जो है उसमें वाज़ह तौर पर तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। रात गए और सुबह सवेरे हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, जबकि दिन के वक्त जो है वो दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। ताहम गुजरांवाला जो है वो इस वक्त स्मोक के हवाले से पहले नंबर पर है, इसी तरह से फैसलाबाद, और तीसरा नंबर जो है अब शहर लाहौर का है। शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग का सिलसिला बरकरार है। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम कैसा रहेगा, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। पंजाब भर का मौसम जो है उसमें वाज़ह तौर पर तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। रात गए और सुबह सवेरे हल्की ठंड का एहसास होने लगा है, जबकि दिन के वक्त जो है वो दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। ताहम गुजरांवाला जो है वो इस वक्त स्मोक के हवाले से पहले नंबर पर है, इसी तरह से फैसलाबाद, और तीसरा नंबर जो है अब शहर लाहौर का है। शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और
महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह से मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना ख़वारिज ने भत्ता ना देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया दहशत गर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जला दी। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मीर अली के मकीनों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए।